Yes. Good morning, everyone. Meanwhile, rest of the students join. I'll start writing. What was the last thing we were discussing yesterday? Before that, I'll introduce you to the next question. So, what we discussed yesterday was remainder estimation theorem. What was the statement of this theorem? That you have a statement that fb have the derivatives of orders, and then the function is there. The fx is a function whose Taylor series can be written. So this function can be written like this, where p and x is the Taylor's polynomial of order n, and Rnx is called the remainder of order n. And how Rnx was defined? Rnx was defined like n plus 1th derivative of the function evaluated at a point c divided by n plus 1 factorial into x minus a raised to power n plus 1. So this is for general when we are writing the Taylor series about the point x equals to a. In particular cases when a will be 0, so we'll have the Maclaurin series. What was the property of that c? So c lies between a and x. So this was the statement of remainder estimation theorem, that if you try to write a function and its Taylor series, then you can say that a function is a sum of two terms. One is a Taylor polynomial and rest of the terms nth order के बाद जो term है वो सब error है, that is the remainder. And how to estimate the remainder? So this is the formula for the remainder, that this is the formula for the magnitude of the remainder. So remainder is nothing but the another word for error, right? So we did one question of this kind, and that was for proving, if you want to prove that the Taylor series, Maclaurin series is also a Taylor series. So whenever I am saying Taylor series, so it automatically means I am also including the Maclaurin series. So if you want to prove that the Taylor series of a function fx converge टू एफ एक्स, कि जिस फंक्शन की वो टेलर सीरीज है वो उसी को कन्वर्ज करे. सो व्हाट वी सपोज टू प्रूव दैट दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो. एंड बिकॉज इट्स एन अप्रोक्सीमेशन, वो कन्वर्जेंस है, तो ये कभी भी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं होता है. दिस गोज टू जीरो होता है एज एन गोज टू इन्फिनिटी. सो दैट मीन्स जितनी ज्यादा टर्म्स आप कंसिडर करोगे, रिमाइंडर का मैग्नीट्यूड या एरर का जो मैग्नीट्यूड है उतना छोटा होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ इट आई शुड राइट, इट शुड गो टू जीरो. सो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो पॉलिनोमियल से जो आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो, दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द एक्चुअल फंक्शन. सो वी डिड वन क्वेश्चन फॉर दिस, एंड दैट क्वेश्चन वाज e रेज टू पावर x. वी हैड टू प्रूव दैट कि जो e रेज टू पावर x की सीरीज है, मैं बहुत क्विकली लिख रही हूँ जो हमने कल डिस्कस किया था, दिस. सो दिस वी वांटेड टू प्रूव that this series converges to e raised to power x only. So according to the Taylor's theorem or remainder estimation theorem, we are writing it like this, and then we calculated Rnx. So Rnx was fn plus 1 c n plus 1 factorial x minus a raised to power n plus 1. And the n plus 1th order derivative of e raised to power x is e raised to power x, whatever will be the value of n. So it will be e raised to power c by n plus 1 factorial x raised to power n plus 1, because a was 0, because the series under consideration is a Maclaurin series, and c lies between 0 and x. And after that, so this is the formula. तो यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में आप पहले इवेल्युएट करोगे कि आर एन एक्स का फॉर्मूला लगाया एंड यू गेट द एक्सप्रेशन फॉर आर एन एक्स. इसके बाद क्या चैलेंज होता है आपके पास? चैलेंज होता है कि अब इस आर एन एक्स को कंप्यूट करना. अब इसमें एन एन तो आप लिमिट ले लोगे, एन गोज टू इन्फिनिटी, सो यू आर लेफ्ट विथ सी एंड एक्स. तो सी को आपको पहले एलिमिनेट करना है. सो उसके लिए हम ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं that c lies between 0 and x. So I made two cases, that if x is lying on the negative side, then c will lie here. If x is on the positive side, then c will lie here. And for both these cases,
we got the estimate of e raised to power c, and then we concluded that because हमारे पास ये आ गया था, मॉड लोगे आप उसका, उसके बाद जब x पॉजिटिव है बिकॉज ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो e रेज टू पावर c वाज, ये मैं रिपीट ही कर रही हूँ जो हमने कल किया है, e रेज टू पावर c वाज लेस देन e रेज टू पावर x, सो दिस इज e रेज टू पावर x by n plus 1 factorial, and when you take the limit n goes to infinity, this part will go to 0. So this is a mod of something is less than 0, which is not possible. So the only possibility is it is 0, it is approaching towards 0. If it's some quantity which is, because we know that because of the presence of modulus, this is greater than equal to 0. So the only possibility for a number to be positive as well as negative is that it is exactly equals to 0. So वो limiting form में है, इसलिए उसको exactly 0 नहीं लिखा जाता है. You can write it like limit n tending to infinity, this is 0. This proves that the Maclaurin series, or whatever you want to call it, the Taylor series of e raised to power x converges to e raised to power x. So we did this yesterday. Now let's do one more question of this particular kind, so it will be even clearer to you. So this statement is, show that Maclaurin series for fx equals to sin x converges to sin x, राइट. तो इसमें भी हमें सेम ही करना है जो हमने e raised to power x में किया है. तो दिस इज sin x इज गिवन टू अस, राइट. सो sin x का सीरीज क्या है, मैं डायरेक्टली सीरीज लिख रही हूँ, बट मैंने आपको बताया था if you do not know the series, do not remember the series, you have to derive the series first. So this is the Maclaurin series for sin x, x minus x cubed by 3 factorial plus x raised to power 5 by 5 factorial, and so on. So if you will be writing the general term of this will be minus 1 raised to power k, x raised to power 2k plus 1 by 2k plus 1 factorial. Now why this is 2k plus 1 I have written? Because you look at the powers, they are 1, 3, 5, 7. So they are the odd numbers. So any odd number is represented in the form of 2k plus 1. We know that. K is just a parameter. आप 2n plus 1 भी लिख सकते हो, 2m plus 1 भी लिख सकते हो. That's immaterial. What is important, हमें एक odd number को representation देनी है. So x की odd powers आ रही हैं. That's why it's x raised to power 2k plus 1 divided by 2k plus 1 factorial. क्योंकि same है, 5 है तो 5 फैक्टोरियल है, 3 है तो 3 फैक्टोरियल है, 1 है तो 1 फैक्टोरियल है, प्लस एक हमने माइनस 1 रेज टू पावर के ये एसोसिएट किया है क्योंकि टर्म्स ऑल्टरनेटिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं. सो ये माइनस 1 रेज टू पावर के से जस्टिफाई हो जाएंगी. सो अगर आप के को 0 सब्सटीट्यूट करते हो तो पहली टर्म जनरेट होगी. सो के बी 0 मीन्स ये टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इसको के को 0 से माना है. And what will be the next term? R2k plus 1. This is this, which I was telling you, that polynomial plus the remainder. So, ये polynomial है आपका एक particular degree तक, तो n is 2k plus 1, right? क्योंकि आपने nth order तक आपने polynomial लिखा है. Immediately next term is going to be Rnx. तो जो भी n होता है उसको हम Rnx से डिनोट करते हैं. तो अब ये Rnx जो होगा ये क्या होगा, R2k plus 1. So with the definition of the remainder, you know, इसमें अगर ये n होता है तो पावर में n plus 1 होता है. The means it's the next power coming over there. So ये 2k plus 1 है. So यहाँ पे term क्या आएगी? If you only talk about its magnitude, so that will be x raised to power 2k plus 2, 2k plus 2 factorial, and here you will be having the wait a minute, f 2k plus 2 order derivative evaluated at c, where c lies between 0 and x, right? I hope this is clear. हम सेम ही लिख रहे हैं. Rnx का फॉर्मूला लिखा है मैंने, n की वैल्यू उसमें डाली है 2k plus 1, बिकॉज 2k plus 1 तक आपने कंसिडर किया है जनरल करने के लिए, राइट? तो this is 2k plus 2th derivative evaluated of the function at the point c, x raised to power 2k plus 2 divided by 2k plus 2 factorial. Now you are at the sailing in the same boat जैसे previous question में था. अब हमें पहले इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, राइट? सो व्हाट इज दिस 2k plus 2 ordered derivative
of the function. What is this? What is your function? This is the underlying function. अब इसका ये कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है? 2k+2. So 2k+2 is the 2k+2 is the even, right? 2k+2 is a even number, right? So it's an eventh order derivative. What is the even derivative of sin x? Even derivative. Sin, just tell me the magnitude of this. नहीं, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव तो cos x होते हैं बेटा. देखो, साइन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज cos x, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स. तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो, प्लस माइनस छोड़ दो, तो हमें पता है जो इवंथ ऑर्डर डेरिवेटिव है वो साइन एक्स है. साइन एक्स के जो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो उनके मैग्नीट्यूड cos x हैं. सो दिस विल बी मैग्नीट्यूड वाइज साइन c एंड x 2k+2 बाय 2k+2 फैक्टोरियल, क्योंकि इवंथ ऑर्डर डेरिवेटिव है. नाउ अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, हम यहाँ पे आ गए थे क्योंकि इस फंक्शन में क्या था, इजी था, क्योंकि e रेज टू पावर x के सारे डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होते हैं. तो वी गॉट दिस सिचुएशन e रेज टू पावर c. यहाँ पे हमें थोड़ा सोचना पड़ा क्योंकि साइन x के डेरिवेटिव दो ही होते हैं, या साइन x या cos x. सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ मॉड से मतलब है. सो साइन डज नॉट मैटर. So this is mod of sin c. Now can you tell me any estimate for this? What can I replace this mod of sin c? I know c lies between 0 and x, but can I write something about it? Less than 1. Right. Those who are having the doubt that it should be 2k+3, I am clarifying you that I am just going according to the theorem statement. So the theorem statement, the remainder estimation theorem tells me कि if I take nth order polynomial, this is the Rn x I have to take, and n में ये n+1 होता है. Do not compare कि ये सीरीज के नेक्स्ट टर्म क्या होगी. हमें पता है कि सीरीज में नेक्स्ट नॉन जीरो टर्म जो होगी वो 2k+3 वाली ही होगी, क्योंकि उसमें ऑड पावर्स आ रही हैं. बट दिस इज नॉट अबाउट दैट. दिस इज नॉट द नेक्स्ट टर्म ऑफ योर सीरीज. दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ द रिमाइंडर कमिंग फ्रॉम द थ्योरम. सो वी हैव टू टेक दिस एग्जैक्टली just +1 of that. तो 2k+2 का +1, सॉरी 2k+1 का +1 करोगे तो 2k+2 ही आएगा, 2k+3 नहीं आएगा. Don't get confused there. And for the answer for the question which I asked, yes, this is right. This is a benefit, with these trigonometric functions, sine and cosine. They are always very easy to deal with because we know their estimates all the time. हम better estimate भी लगा सकते हैं, but this is something universal. We know that whatever be the value of c, हमें इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी. कुछ भी हो जाए, sin c का magnitude is definitely less than equals to 1. So I can use that, and I am always looking for less than equal to type bounds because हम estimate कर रहे हैं ना रिमाइंडर को, तो हमें less than equal to ही चाहिए होता है. So it's easy. हमने mod of sin c को सीधा less than equal to 1 से रिप्लेस कर दिया, बाकी टर्म जो है वही रहेगी. राइट. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द लिमिट. अब मैंने k की टर्म्स में लिखा है, इट्स वन एंड द सेम थिंग. योर n इज 2k+1, so n going to infinity is equivalent to k goes to infinity, right? So it's just a parameter change. आप 2n+1 भी लिख सकते हो उसको, that I have earlier explained. So when you will be taking this limit k tending to infinity, what is the value of this limit? what value you are going to get this limit when you take limit k tending to infinity? 0. Yeah, this is exactly same, one of the standard limits. वही है जो हम बहुत बार यूज करते हैं. लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल इज 0, व्हाटएवर बी द n, राइट. जैसे कल वाले क्वेश्चन में भी ये यूज हुआ था, यहाँ पे भी बस ये n था. फर्क क्या है, वहां पे वो n वाज एवरी नंबर, यहाँ पे n इज स्पेसिफिकली इवन. ऑड भी हो तो हमें पता है वो फर्क नहीं पड़ता. इफ दैट इज गो वट एवर बी द एन, इट्स लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट्स गोइंग टू 0. सो दिस इज गोइंग टू 0. सो एग्जैक्टली what we get is this remainder is less than equal to 0 as k goes to infinity. Again, using the same logic that since the mod of anything, whatever be the remainder, is always positive quantity, therefore the only possibility is the remainder is exactly 0, या फिर you can say goes to 0 as k goes to infinity.
therefore the proof is that Maclaurin series for sin x converges to sin x, राइट। तो ये भी प्रूव हो गया। तो हमने जो प्रूव किया है कि e रेज टू पावर x की जो मैक्लॉरिन सीरीज है उसका वो भी e रेज टू पावर x के ही इक्वल है, sin x की जो मैक्लॉरिन सीरीज है वो sin x के ही इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया इन रीजन से। सो दिस इज द वन काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें रिमाइंडर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं मिला है, हमने बस प्रूव किया इट गोज टू जीरो, राइट, मीन्स इट विल डिक्रीज, something like हमने प्रूव किया it will keep on decreasing as we keep on increasing the number of terms in the polynomial, right? So this is the proof of these two. Now after this what we are going to do, हम अब थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम एरर को एस्टिमेट करेंगे। सो व्हाट इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन? सो ये जो दो क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं ये जनरल थे, थ्योरेटिकल थे। सो व्हाट इज द अदर काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर हैविंग is this. So I'm giving you the statement. I'll take all of your doubts today, don't worry. But let me just first discuss this question. Use remainder estimation theorem to estimate the error in approximation e raised to power x is equal to 1 plus x square by 2 when mod of x is less than 0.1. So this is a statement given to me. अब ये ना वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने कल किए थे, राइट? कल हमने कौन सी थ्योरम के क्वेश्चन किए थे? ऑल्टरनेटिंग सीरीज एस्टिमेशन थ्योरम के। अब यहाँ पे दे हैव क्लैरिफाइड कि रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम लगाना है। क्यों बताया है? ना भी बताया हो तो भी हमें पता है कि अगर इसमें हमें एरर एस्टिमेशन का क्वेश्चन आएगा, ये अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जिसमें हमें एरर का बाउंड निकालना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको पहली चीज ये देखनी है कि आपकी सीरीज जो है ऑल्टरनेटिंग है कि नहीं है। दिस इज क्लियरली ई रेज टू पावर एक्स की सीरीज ऑल्टरनेटिंग नहीं है, तो यहाँ पे तो हम रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम ही लगा सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग सीरीज एस्टिमेशन थ्योरम नहीं लगेगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी आर क्लियर अबाउट कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हम रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ना भी बताया होता तो भी वी वुड हैव कंक्लूडेड एट दैट स्टेटमेंट, राइट? विल बी यूजिंग दिस। Sin c beta is not exactly equals to 1, mod of sin c less than equals to 1 यूज किया है मैंने यहाँ पे, इफ यू सी लेस देन से रिप्लेस किया है, इक्वल्स टू 1 से नहीं रिप्लेस किया है। ओके, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, मैं आपके सारे डाउट्स लूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू नाउ रीड द चैट बॉक्स, आई विल बी फर्स्ट टेकिंग दिस क्वेश्चन and then I hope your doubts will be clear. So we cleared that this is not an alternating series, so we'll be using remainder estimation theorem. So how to use that? So it's easy, पहले आप सीरीज लिख लो, तो e raised to power x की सीरीज तो हमें पता ही है क्या होती है। So ये हमारी सीरीज है। अब सीरीज लिखने के बाद अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जाते हैं कि अच्छा कितनी टर्म्स कंसीडर करने को बोला है, राइट? हाउ मेनी टर्म्स? सो वो दो तरीके होते हैं बताने के, आइदर दे कैन टेल यू that consider 3 terms, consider 2 terms, they can tell you in number or they can tell you with this way, and this is the most common way. आप एग्जांपल जितने भी करोगे उसमें आपको यही मिलेगा कि आपको वो लिख के बता देंगे कि यहाँ तक कंसीडर करो। तो जैसे इसमें 3 ही टर्म्स हैं, 1 plus x square by 2, दैट मीन्स यहाँ तक हमने कंसीडर करना है। दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्रंकेशन, यहाँ पे हमने सीरीज को ट्रंकेट किया है, तो दैट मीन्स दिस इज अवर अप्रोक्सीमेशन, राइट? तो दैट मीन्स जो आपका पी एन एक्स है, सो ई रेज टू पावर एक्स इज पी एन एक्स प्लस आर एन एक्स। तो जो आपका पी एन एक्स है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इससे हमें पता चला कि हमारा एन क्या है, 2। तो आपको एन आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि एन बस एन ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ, अदरवाइज सिंपली आप इसको देख लो, जो यहाँ पे लिखा होगा जहां पे आपने ट्रंकेट किया, जस्ट लुक एट द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स, दिस इज 2, सो वहीं से पता चल गया n इज इक्वल टू 2। सो दैट मीन्स जो आर एन एक्स का फॉर्मूला होगा, रिमाइंडर का फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे, वी नो द फॉर्मूला इज दिस, टेलर सीरीज नहीं है, मैक्लॉरिन्स है, मीन्स a इज 0, तो मैंने डायरेक्टली x माइनस a नहीं लिखा है, x ही लिखा है। तो n इज 2 जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, सो दिस विल बी r2x f थर्ड डेरिवेटिव x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। सो पहले तो यहाँ तक पहुंचना जरूरी है। तो आर एन एक्स का हमें जनरल फॉर्मूला याद रखना है कि ये आर एन एक्स का जनरल फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में हमें पहले n पता होना चाहिए कि n क्या है।
वो कैसे पता चलता है? क्वेश्चन को देख के, कि जहां तक उन्होंने आपको कंसिडर करने को बोला है तो जस्ट लुक एट द हाईएस्ट पावर, दैट वे यू विल गेट योर n, राइट? सो यू गेट Rn(x) इज दिस, R2x इज दिस, एंड C की वही वाली प्रॉपर्टी, वी नो C लाइज बिटवीन 0 एंड x, राइट? अब यहाँ पे लेट मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो दिस इज व्हाट यू हैव डिराइव्ड third order. So tell me the third order derivative of the function e raised to power x. Third order derivative we know is e raised to power x. So उसमें c substitute कर देंगे, e raised to power c. So यही error है, ये रिमाइंडर ही है, यही आपका एरर है. हमें इसका एस्टिमेट निकालना है. एस्टिमेट निकालने के लिए हम मॉड ले लेंगे, क्योंकि मॉड को ही एस्टिमेट किया जाता है. So this is e raised to power c is always going to be a positive quantity. It will come outside the modulus sign. So this. Now you again go back to your statement कि given क्या है. अब इसको हमें एक numerical number से replace करना है, means less than something, bound, estimate निकालना है. तो उसमें दो चीजें हैं. अब n तो पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट हो गया है 3, n के वो तो यू आर जस्ट टू पैरामीटर्स हियर, c एंड x. तो c और x का एस्टिमेट हमें लगाना है, और वो कैसे लगेगा? लुक एट द स्टेटमेंट. आपको गिवन है मॉड ऑफ x इज लेस देन 0.1. तो आपको इट्स द सेम सिचुएशन जो मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग सीरीज के क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करी थी, कि जब आप एरर का फॉर्मूला लिख देते हो उसके बाद आपको फिर क्वेश्चन में देखना है कि आपको x गिवन है कि नहीं गिवन है. तो यहाँ पे जैसे मॉड x का एस्टिमेट मुझे गिवन है कि मॉड x इज लेस देन 0.1, तो ऑब्वियसली मॉड x का क्यूब विल बी डायरेक्टली रिप्लेस्ड विद दिस. इजी. तो मॉड x का क्यूब का एस्टिमेट तो हो गया मेरे पास, क्योंकि मॉड x ये गिवन है, इज्यूम नहीं किया है, ये गिवन है. सो दिस इज गिवन, सो दिस विल इम्प्लाई दिस. क्या रह गया सिर्फ मेरे पास एस्टिमेट करने के लिए? e raised to power c. और उसको एस्टिमेट करने के लिए आई विल बी यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट c lies between 0 and x, and another information which I will be using is about the function. अब क्योंकि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब ध्यान से समझना है इसको. आपका x कहां से कहां तक है? 0.1 से लेकर -0.1 तक. अब ये आपका होगा फंक्शन का ग्राफ e raised to power x का इस इंटरवल के ऊपर. अब x कहीं पे भी हो, x इज एनीवेयर इन दिस इंटरवल. अगर तो x पॉजिटिव साइड है तो c लाइज बिटवीन 0 एंड x, तो c यहाँ पे होगा. और अगर x नेगेटिव साइड है तो c लाइज बिटवीन 0 एंड x, फिर c यहाँ पे होगा. मींस x अगर पूरा इतनी इंटरवल में ट्रेवल कर सकता है तो c भी इतना ही ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे x आपका 0.1 के पास होगा तो c भी इट कैन बी एनीवेयर. सो अगर x इज वेरी क्लोज हियर तो c का भी इतना ही इंटरवल बन जाता है, बिकॉज c ऑल्सो हैज टू लाई इन द सेम इंटरवल. सो दैट मीन जो x का इंटरवल का रेंज है वही c का इंटरवल रेंज बन जाता है आपके पास. एंड क्योंकि हमें इसको रिप्लेस करना है लेस देन से, तो एक्चुअली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज द मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन ओवर दैट इंटरवल. तो ये हर क्वेश्चन में यही होगा. यहाँ पे जो भी बचेगा c का फंक्शन, हमें उसको उसके मैक्सिमम से रिप्लेस करना है, क्योंकि आप एक फंक्शन के साथ लेस देन इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करना चाहते हो. तो मैं यही लिखूंगी ना दैट a इज लेस देन 3. अगर मुझे पता है a की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, या कोई भी पैरामीटर है, जैसे यहाँ पे भी एक्चुअल में हमने क्या किया था, मॉड ऑफ साइन सी को उसके मैक्सिमम से रिप्लेस किया था, तभी हम लेस देन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो असेंशियली बस अब आपको कंक्लूसिव ये याद रखना है क्वेश्चंस में कि यहाँ पे कुछ भी बने सी का फंक्शन, हमें उसको उस फंक्शन का क्या कंप्यूट करना है? मैक्सिमा. और मैक्सिमा कंप्यूट करना है और उससे उसको रिप्लेस कर देना है, मैक्सिमा ओवर दैट इंटरवल. अब किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? If I ask you the question, given any function, I ask you to give me the maximum value of that function over that particular interval. How will you find that? It's a basic calculus question. Find the maxima minima. कैसे find करते हैं maxima minima? Differentiation या हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे और फिर उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो दिस विल बी वन वे विच यू कैन अडॉप्ट. बट यहाँ पे एक और सिंप्लीफिकेशन हम यूज करते हैं. ऑल ऑफ यू आर करेक्ट इन आइडेंटिफाइंग कि ऐसे ही हम मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, बट ये उससे भी आसान है यहाँ पे, बिकॉज जो अंडरलाइंग फंक्शन है आपका किस तरह का फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. एंड सिंस दिस हैपेंस टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन, हमें पता है इंक्रीजिंग फंक्शन का जो मैक्सिमा है बाउंड्री पॉइंट पे ही आता है.
मान लो ये आपका इंटरवल है ना, तो इस इंक्रीजिंग फंक्शन यू कैन सी द ग्राफ, तो इस यही होगा मैक्सिमम, इससे कम तो नहीं होगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है फंक्शन आपका कि हो सकता है इंटरवल के बीच में कहीं मैक्सिमा आया हो या बीच में कहीं मिनिमा आया हो, राइट? योर फंक्शन इज मोनोटोनिक, इट्स अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मोनोटोनिक फंक्शंस होने का बहुत बेनिफिट होता है। तो हमें पता है कि मोनोटोनिक फंक्शंस जो होते हैं उनके जो मैक्सिमम या मिनिमम मीन जिनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं, वो बाउंड्री पे ही मिलेंगे आपको, बीच में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका बिहेवियर कंटिन्यूस मोनोटोनिकली है। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी होता, अगर ये डिक्रीजिंग भी होता तब भी उसका मैक्सिमा बाउंड्री पे ही होना था। डिफरेंस क्या होना था, फिर मैक्सिमा लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट पे आना था, राइट? सो हेयर यहाँ पे आपको फंक्शन को देखना है, तो पहले हमेशा यही ट्राई करो, क्योंकि वो मोस्टली क्वेश्चन में बहुत इजी फंक्शंस मिलेंगे आपको। तो साइन सी कॉस सी मिलते ही तो आप 1 से सीधा रिप्लेस कर दोगे, बट जब उसके अलावा कोई फंक्शन होगा तो यू हैव टू लुक एट इट दिस वे, is this an increasing function? So it's easy, everybody knows in the world ki e raised to power x is an increasing function, so I know that this is going to happen at the boundary of this interval, which is 0.1. so what I am going to do further is c की जगह पे 0.1 आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और बाकी तो है ही है। ये कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था, मैंने x को इसको यूज कर लिया था, राइट? तो बस इतना ही पार्ट है, क्योंकि मॉड x के लिए तो सीधा हमेशा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो 6 हो कोई भी पावर हो, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ये तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दोगे लेस देन के लिए, बट यू विल बी ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद दिस पार्ट। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, उसको मैक्सिमा निकालना आना चाहिए, तो वो डेरिवेटिव वाला तरीका ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन उससे भी ज्यादा सिंपल है, तो आप डेरिवेटिव करके भी निकालोगे फिर भी यही आएगा, बट वी नो इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बिकॉज वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स में यही होने वाला है, आपके जहाँ पे जो फंक्शन आएंगे या वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका राइट बाउंड्री पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल विल बी द मैक्सिमम, एंड अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट पे आ जाएगा। और इंटरवल क्या है, ये जो x का इंटरवल है वही c का इंटरवल है, बिकॉज ऑफ द लॉजिक दैट c लाइज बिटवीन 0 एंड x। सो इट्स वेरी इजी, आपको ये कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता, ये आप 3-4 क्वेश्चंस करोगे उसके बाद आपको पता ही चल जाता है कि अच्छा c की वैल्यू वही आएगी मैक्सिमम जो x की वैल्यू है, तो 0.1 आप सीधा डालोगे, यू विल गेट। अब बस इसको कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट कर लेना है, वॉट एवर इट टर्न्स आउट टू बी दैट इज योर आंसर। मैं आंसर बता देती हूँ, इट इज 1.84 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आपका एरर का एस्टिमेट आ गया कि अगर आप e⁻x की ये वाली अप्रोक्सीमेशन यूज करते हो सेकेंड डिग्री तक, और मॉड x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, तो एरर इससे बड़ा नहीं हो सकता है। दिस इज व्हाट द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, राइट? दिस इज वेरी इजी, इट्स जस्ट आपको Rn(x) का फॉर्मूला लगाना है, n की वैल्यू पता करनी है, n की वैल्यू पता कैसे करनी है मैंने बता दिया, फिर ये बनेगा उसका उतना ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेना है आपके फंक्शन का आपको, फिर इसका एस्टिमेट लगाना है, कैसे लगाना है दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू, राइट? सो दिस वाज यूजिंग द रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम फॉर दिस, right? So let me just do one more question of this kind, after that I'll be taking your doubts. So the same statement, estimate the error in approximating sine hyperbolic x by x plus x cube by 3 factorial when mod of x is less than 0.5। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन वही है, इट्स ऑलमोस्ट द सिमिलर स्टेटमेंट जो पिछले क्वेश्चन में थी, यहाँ पे बस बता दिया था रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम यूज करो, वहां पे बताया नहीं है, तो वी विल फिगर इट आउट आवरसेल्व्स, और अप्रोक्सीमेशन बताई है और मॉड एक्स बताया है, सेम ही है यहाँ पे, बस द ओनली डिफरेंस इज दे हैव नॉट टोल्ड अस कि रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम यूज करना है। सो वो डिसाइड करने के लिए, जैसे इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मार्क है कि रिमाइंडर वाले लगाएंगे कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज वाले लगाएंगे, तो उसके लिए पहले हमें सीरीज पता होनी चाहिए कि ये सीरीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज है कि नहीं है। तो वैसे तो आपको ये दो टर्म्स देख के पता चल रहा है कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो नहीं है, बिकॉज ये पहली टर्म भी पॉजिटिव है, दूसरी टर्म भी पॉजिटिव है, बट स्टिल इवन रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम आप लगाना चाहते हो, मान लो ये सिर्फ इतना ही होता क्वेश्चन, सिर्फ एक टर्म ही गिवन होती, तो एक टर्म को देख के आपको नहीं पता कि ये सीरीज ऑल्टरनेटिंग है कि नहीं है, तब तो आपको सीरीज जो है डिराइव करनी ही पड़ेगी।
सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि पहले आपको सीरीज पता होनी चाहिए. सो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है. जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कॉस हाइपरबोलिक एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज कैसे डिराइव करते हैं. सो दिस इज दिस. तो इसकी सीरीज पता है, इसकी सीरीज पता है, ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, वो साइन हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज है. On the similar lines, you can derive the series for sine hyperbolic x. So I'm directly writing the series. इसमें even powers बची थी, इसमें odd powers बचेंगी. So you will be having this as the series for sine hyperbolic x. Right? ये you can try it yourself. ये बहुत easily आ जाएगा. You derive this series yourself. Right? So when I get to see here, मुझे पता चल गया कि मुझे इस पे कौन सी थ्योरम लगानी है, रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज. राइट, सारी टर्म्स प्लस 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 हैं, ऑल्टरनेटिवली माइनस नहीं है. सो डिसीजन पहला हो गया. उस डिसीजन के बाद फिर अब मुझे पता है कि मुझे आर एन एक्स लिखना है. आर एन एक्स लिखने के लिए मुझे एन पता होना चाहिए. एन कैसे पता चलता है? क्वेश्चन पढ़ के. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल कंसिडर करना है. मीन्स यहां तक कंसिडर करने को बोला है आपको. राइट. सो अब जो लॉजिक मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वहां पे इट वाज वर्किंग बिकॉज यू टुक जो हाईएस्ट पावर है उसी को n ले लेना और वही आर एन एक्स का आपका फॉर्मूला हो जाएगा. वो आपको एरर का बाउंड दे देगा. अब इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है. अब ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, ये वाली इस क्वेश्चन में, इट विल वर्क फॉर एवरी क्वेश्चन. दिस इज नॉट इनकरेक्ट. बट अभी हम कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं. अब एक लॉजिक है विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. अब यहाँ पे आप देखो, ये है 1 3 5. यू जस्ट लुक एट द पावर्स. पावर्स क्या है? ऑल्टरनेटिंग. मीन्स पावर्स क्या है? सिर्फ ऑड पावर्स हैं. इवन पावर तो आ ही नहीं रही है बीच में. वो क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज एक्चुअल में दिस सीरीज इज 0. First term is 0, constant term. Second term is x. The third term is actually this. Then we have this. Then we have this. Sorry. Because actual में जो आपने terms derive करी हैं, एक्चुअल में सीरीज जब डिराइव करते हैं, अगर आप बेसिक डेफिनेशन से करोगे तो ये होता है. ये क्यों होता है कि जो इवन वाली टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट 0 बन गए हैं, इसीलिए वो इसमें आ नहीं रहे हैं. राइट. राइट. बट एक्चुअली इफ यू लुक एट नाउ, दे आर सेइंग कि साइन हाइपरबोलिक एक्स को आपको क्यूब तक लेना है. अब अगर मैं इसको एज एन अप्रोक्सीमेशन यूज करूं या फिर इसको भी बीच में इंक्लूड कर लूं, एक्स रेज टू पावर 4 वाली टर्म को भी बीच में इंक्लूड करूं, विल दैट चेंज एनीथिंग? मैं कह रही हूँ कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इज एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल. नाउ आई एम सेइंग दिस इज दिस. सो इज देयर एनी डिफरेंस? बिकॉज जो मैंने इंक्लूड किया है वो 0 है. इट इज समथिंग लाइक, अब एक कोई डिसीजन होना है. राइट. एक डिसीजन है, वो ये कह रही है थ्योरम हमारी कि जितनी टर्म्स ज्यादा इंक्लूड करोगे ना, उतनी एक्यूरेसी जो है ज्यादा आएगी. अब मैं सिर्फ इतनी टर्म्स को इंक्लूड करूं या फिर एक टर्म और इंक्लूड कर लूं, तो डिफरेंस क्या रहेगा कि मेरी एक्यूरेसी इसमें ज्यादा आएगी. क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी बाउंड है, एरर बाउंड है, वो आपका एक्स का फंक्शन होती है और एक्स मोस्टली 1 से छोटा होता है. 1 से बड़ा होगा तो एरर बहुत ज्यादा होता है. 1 से छोटा होने के कारण जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, राइट. अब 0.5 की पावर 5 या 0.5 की पावर 4, ये इज लेस इन मैग्नीट्यूड. मीन्स ये एरर में ये वाली टर्म आने वाली है, तो ये वाला एरर कम होगा इससे. राइट. बट अप्रोक्सीमेशन दोनों सेम है. मीन्स अगर मैं सम की बात करूं तो ये भी उतना ही आंसर देगी, ये वाली चीज भी मुझे उतना ही आंसर देगी, बिकॉज जिसको मैंने इंक्लूड किया है दैट इज 0, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. बट थ्योरेटिकली क्या हो गया है, उससे जो मुझे एरर बाउंड मिलेगा वो बेटर होगा. इट इज समथिंग लाइक, पहले केस में अगर मुझे मिल रहा है एरर इज लेस देन हाफ, दूसरे केस में मुझे मिलेगा एरर इज लेस देन 1/3. ये भी गलत नहीं है. एरर जो है ऑब्वियसली हाफ से कम है, बट ये एक बेटर वे है बताने का. अच्छा, एरर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एरर.
तो अगर कोई मुझे बताएगा कि नहीं 1/2 से तो कम है ही है, बट आई एम टेलिंग यू दैट 1/3 से कम है एरर, so that person is giving me a better answer, right? Because it is a lesser, so smaller the bound, better is the accuracy, smaller is the, मुझे उतना कम इंटरवल में एरर जो मिलेगा, राइट? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि अपर बाउंड तो वो है, दोनों अपर बाउंड्स होंगे, बट जो छोटा अपर बाउंड होगा वो ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है. सो दैट इज वाई इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम n को 3 लेने की बजाय n को 4 कंसिडर करेंगे, बिकॉज जो R4 हम निकालेंगे और जो R3 हम निकालेंगे दोनों एरर बाउंड्स हैं. एज आई टोल्ड यू, ये भी एक करेक्ट एरर बाउंड है, ये भी एक करेक्ट एरर बाउंड है, बट दिस वन इज बेटर, जो छोटा है. सो R4 और R3 दोनों एरर बाउंड्स करेक्ट हैं, बट जो R4 है वो बेटर एस्टिमेट होगा बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक कि आप जितनी टर्म्स ज्यादा इंक्लूड करते हो उतना बेटर होता है. और यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे R2 फिर यहाँ पे भी R3 क्यों नहीं कैलकुलेट किया? क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम R2 ही बनता है, बिकॉज 2 इज द मैक्सिमम पावर अप टू विच यू कैन गो. R3 के लिए तो x क्यूब को लेना पड़ेगा बीच में, वो आप नहीं ले सकते हो क्योंकि वो नॉन जीरो टर्म है. यहाँ पे आई कैन टेक दैट बिकॉज वो प्रेजेंट ना होके भी वो टर्म वहां पे मैंने प्रेजेंट काउंट कर लिया, ऑल्दो उसकी वैल्यू जीरो है, राइट? Is this logic clear all to all of you? कि instead of computing n is equal to 3, I'll be computing n is equal to 4, so I'll be computing R4. So अगर आप R3 कंप्यूट करके भी आंसर निकालते हो, nobody is going to tell you कि ये गलत एस्टिमेट बताया है. इट इज जस्ट R4 वाला जो बताएगा वो एक बेटर एस्टिमेट होगा. इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, it's about good and better, right? So R4 will be giving me a better bound because I have used this logic. और ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा. ये यही एप्लीकेबल होगा 1, 3, 5, 7, जिसमें पावर्स जो है स्किप हो रही हैं. मीन्स और ऐसी आपको दो ही सीरीज मिलेंगी, एक साइन हाइपरबोलिक एक्स मिलेगी और एक कॉस हाइपरबोलिक एक्स मिलेगी. मीन्स इनके अलावा भी और एग्जिस्ट करती हैं, बट आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे अपनी बुक में यूजुअली इन्हीं दो सीरीज के मिलेंगे. सो आपको इसको ऐसे कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन में हमें ऐसे करना है. आप उसका लॉजिक को समझो, आप ये उस हर क्वेश्चन में कर सकते हो. ये लॉजिक कि एक वर्चुअली एक टर्म को एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया, आप ये हर उस क्वेश्चन में कर सकते हो जिसमें पावर्स स्किप हो रही हैं, या ऑड पावर्स आ रही हैं या इवन पावर्स आ रही हैं, राइट? सो यहाँ पे तो ये मैंने दो एग्जांपल तो आपको बता दी. इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही होगा अगर इसका एरर एस्टिमेशन का क्वेश्चन आएगा कॉस हाइपरबोलिक का, और इसमें भी है. बट इनके अलावा और भी क्वेश्चन कोई हो सकता है जिसमें इस तरह की सीरीज आए. बट अदरवाइज नॉर्मली जो फंक्शंस होते हैं जिनमें सारी पावर्स आती हैं एक्स की कंटिन्यूस 1, 2, 3, उसमें आपको ये चीज सोचनी ही नहीं है. उसमें इसी लॉजिक से जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि हाईएस्ट पावर देखो, वही n ले लो और वही Rn कैलकुलेट होगा. तो ओनली फॉर वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस जिसमें एक टर्म को एक्स्ट्रा इंक्लूड करके हमारी अप्रोक्सीमेशन पे फर्क नहीं पड़ रहा है, वी कैन यूज दिस लॉजिक. सो विद दैट आई विल बी कैलकुलेटिंग R4x. नाउ व्हाट इज R4x? R4x will be fifth order derivative computed at c, fifth power 5 factorial. अब ये फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मुझे बताना है. आपका फंक्शन है sin hyperbolic x. So all of you please do the calculation and tell me the fifth order derivative of this function. Easy है, मैं वैसे आपको बता देती हूँ. इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, इसको वही लिख लो, e raised to power x minus e raised to power minus x by 2. What is the first order derivative? E raised to power x plus e raised to power minus x by 2. Again, what is the second order derivative? E raised to power x minus e raised to power x minus 2. What is the third order derivative? E raised to power x plus e raised to power minus x by 2. So you see the logic, sine, cos, sine, cos. तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं. इट्स सिंपल, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक. सो यू कैन सी द ट्रेंड. फर्स्ट, थर्ड जो ऑड डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, कोसाइन आ रहे हैं. सो फिफ्थ वाला डेरिवेटिव भी क्या होगा, कोसाइन हाइपरबोलिक होगा. इवैल्यूएटेड एट c x raised to power 5 by 5 फैक्टोरियल. दिस इज R4. तो ये बस इस क्वेश्चन में स्पेशल था कि R3 नहीं निकालना, R4 निकालना है. उसके लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है. अब हम उसी तरीके से इसका एस्टिमेट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. तो अब हम इसकी बात करेंगे, इसके मॉड की.
R4x is mod of cosine hyperbolic c x raised to power 5 by 5 factorial mod of course. अब वही क्वेश्चन पढ़ोगे, x का एस्टिमेट तो पता है, mod x क्या है, लेस देन 0.5, तो mod x वाली तो रिप्लेसमेंट मैं कर दूंगी लेस देन 0.5. बात कहाँ पे आती है हमारे पास, कोसाइन c पे, कि इसका एस्टिमेट कैसे निकालना है. तो उसके एस्टिमेट के लिए ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज उसको रिप्लेस कर दो उसके एक्चुअल फॉर्मूला से. कोसाइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लिखा है मैंने, इट्स जस्ट इक्वल टू है, अभी मैंने कुछ बाउंड नहीं यूज किया, इट्स जस्ट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड अ फॉर्मूला x रेज्ड टू पावर 5 by 5 फैक्टोरियल. राइट, अब हम यही लॉजिक यूज करेंगे जो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो भी फंक्शन बनता है आपको बस उसको लेस देन करके उसके मैक्सिमम से रिप्लेस कर देना है ओवर दैट इंटरवल. तो पहले तो इंटरवल आइडेंटिफाई करते हैं. यहाँ पे इंटरवल क्या है, यहाँ पे आपका मॉड एक्स क्या गिवन है, लेस देन 0.5. तो जो x का इंटरवल होता है वही c का इंटरवल होता है. दैट लॉजिक आई एक्सप्लेन टू यू. -0.5 से 0.5, तो ये x का इंटरवल है, x कहीं भी हो सकता है तो c भी कहीं भी हो सकता है, तो c का भी ये इंटरवल है. सो दैट मीन्स ये c की वैल्यू है, रेंज है जो ये है. सो कैन यू टेल मी द मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन ओवर दिस इंटरवल. पूरे का बताना है. बाय 2 तो चलो हम हो जाएगा, बट e रेज टू पावर c प्लस e रेज टू पावर -c, इसका आपको मुझे बताना है कि इस इंटरवल के ऊपर मैक्सिमम क्या है. तो आई एम गिविंग यू द हिंट. फर्स्ट यू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. इज इट एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इज इट एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक करते हो, हाउ डू यू चेक वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग, और कुछ भी जैसे भी. Is the question clear? How do you check a function is increasing? The derivative should be positive. Its slope should be positive. So let me do that calculation for you. ये मेरा function है by 2. by 2 तो चलो स्केलर है, बाद में भी हैंडल हो जाएगा. इसको सपोज मैं मान लूँ g. What is the derivative of this function? E raised to power c minus e raised to power minus c by 2, which is positive. I know e raised to power c is always going to be greater than e raised to power minus c. If this is your graph of e raised to power x, so ये e raised to power minus x का ग्राफ होता है. So positive side के लिए this is always greater than this. Negative side के लिए उल्टा होता है, माइनस सी का ग्राफ प्लस सी के ऊपर होता है, बट हम सिर्फ उसके मॉड की बात कर रहे हैं. राइट, इट्स मॉड ऑफ दैट, सो दैट इज हैविंग द सेम साइन, दैट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन. राइट, अगर आप सिर्फ उसकी पॉजिटिव साइड कंसिडर करो इंटरवल की, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस इन द सिमिट्री. राइट, ये क्योंकि सिमिट्री फंक्शन है. अब मैं इसको c को माइनस सी से रिप्लेस कर दूं, इट इज गोइंग टू बी द सेम फंक्शन. राइट, सो वट एवर बी द फंक्शन ऑफ the behavior on the positive side of x or the positive side of c, same is the treatment of the function on. So it's sufficient to just look at the positive side. Is it clear कि ये functions एक even function है. even function आप समझते हो कि if you replace c by minus c, it's going to be the same. So that means if you just look at the positive side of the graph, so that information is sufficient to deal with. So इस side पे I have this thing happening. So that means this is positive. This means this function is an increasing function. Since this an increasing function, तो इसका maximum जो होगा over the interval, जो interval आपको consider है, that will be e raised to power 0.5 plus e raised to power minus 0.5 by 2. अब c की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0.5, क्योंकि इंक्रीजिंग है. यू सी द ग्राफ, तो बाउंड्री पे ही मैक्सिमम होगा. और बाउंड्री पॉइंट क्या है, e रेज टू पावर, बाउंड्री पॉइंट क्या है, 0.5. सो दिस विल बी डायरेक्टली, दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू. सो योर R4 जो हम कंप्यूट कर रहे हैं, दिस इज लेस देन e रेज टू पावर 0.5, e रेज टू पावर माइनस 0.5 बाई 2. मॉड एक्स की जगह पे भी 0.5 रिप्लेस हो जाएगा बाय 5 फैक्टोरियल. इज इट क्लियर. यहाँ पे आके आपको बस लॉजिक लगाना है कि इसको इस फंक्शन के मैक्सिमम से रिप्लेस करना है. तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि अच्छा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैक्सिमम बाउंड्री पे ही होगा. बाउंड्री इंक्रीजिंग फंक्शन की हमेशा राइट वाली बाउंड्री पे होगा, तो राइट बाउंड्री पॉइंट इज 0.5, सो आई सब्स्टिट्यूटेड 0.5. राइट, और अगर आप ये कहते हो कि इस इंटरवल में, जैसे इसके लेस पे, मतलब व्हेन नेगेटिव साइड पे
ये डिक्रीजिंग है, तब भी आपका मैक्सिमम कहाँ होगा, -0.5 पे। तो c को -0.5 डालोगे, फिर भी वही वैल्यू मिलनी है, बिकॉज ये फंक्शन इवन फंक्शन है। दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन। तो इट्स सफिशिएंट टू जस्ट लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस, मीन्स दिस साइड, राइट। सो इसको कैलकुलेट कर लो, ये न्यूमेरिकली वट एवर इट टर्न्स आउट टू बी, इट टर्न्स आउट टू बी 2.94 into 10 raised to power -4. This is the bound. So this was for this particular question. Now I am checking your doubts. Yes, I have already uploaded the recording of the lectures. Yes, including the fourth term does not make a difference to the basic definition. That is why उसको include किया है ना। एरर देखो, यही तो इसमें रिमार्केबल चीज है कि जो इन्होंने कहा था कि क्यूब तक लेना है, तो हमने फोर्थ तक लेके भी एक्चुअल में क्यूब तक ही लिया है, बिकॉज वो फोर्थ टर्म का कंट्रीब्यूशन नहीं है, फोर्थ पावर टर्म का कोई पॉजिटिव चीज वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है सम में, तो सम में कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो एज अ सम इट इज स्टिल द सेम। तो एरर उसमें सेम ही है, चाहे आप यहां तक कंक्लूड करो चाहे आप यहां तक, एरर उतना ही है अप्रोक्सीमेशन में। इट इज जस्ट हमें एग्जैक्ट एरर तो पता नहीं है ना, तो हम एरर का एस्टिमेट बताना चाह रहे हैं। तो एरर मान लो जैसे एरर इतना है किसी क्वेश्चन में, अब एरर सपोज है 1/4, कोई और एग्जांपल है उसमें एरर 1/4 है, बट किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि एरर 1/4 है। तो वन पर्सन इज टेलिंग मी कि एरर जो है ना हाफ से कम है, और दूसरा पर्सन कह रहा है कि नहीं एरर ना 1/3 से कम है। तो एग्जैक्टली तो दोनों ने नहीं बताया एरर कितना है, बट जिसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया कि एरर इज लेस देन 1/3, दैट इज अ बेटर एस्टिमेट, राइट, दैट इज अ बेटर इंफॉर्मेशन। तो इट इज जस्ट क्योंकि हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो एरर दोनों में सेम ही होगा एग्जैक्टली, बट उसका बेटर बाउंड हमें R4 से मिलेगा, और ये हम पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉजिक विच आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू। राइट, ई रेस टू पावर एच, बेटा ऐसा कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ई रेस टू पावर एच जिसकी आप बात कर रहे हो। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर सीरीज। हमारा सीरीज वाला चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। सो all of you just go through this and bring the doubts, क्योंकि ये जो एरर एस्टिमेशन वाला टॉपिक है थोड़ा सा ऐसे है कि आपको खुद से इसको देखना पड़ेगा, only then you will be doing this, I mean getting the answers to this. Yes, please ask your question. Yes, Pranshu, you can ask. Ma'am, Yes. already Not audible. मैम हेलो। Hello, hello. Yes. मैम जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए एरर निकालने वाला, हाँ, मैम उसमें तो मतलब कुछ भी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव वगैरह नहीं, उसमें तो बस नहीं है नेक्स्ट ना, टर्म लेनी है। बस हाँ, इसीलिए तो वो सिंपल है, क्योंकि ओके ओके। उसमें वो प्रूफ में जो थ्योरम का प्रूफ नहीं ना किया उन्होंने, प्रूफ में ऑलरेडी ये सब कुछ कंसिडर किया हुआ है, राइट। तो इसलिए ओके वहां तो कुछ भी सोचना ही नहीं है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज में जस्ट जो भी नेक्स्ट टर्म दिख रहा है जस्ट टेक इट, दैट्स तो इट। मैम प्रूफ हमें करना है? नहीं नहीं, अगर ओके करना मैम। होता तो आई वुड हैव गिवन यू द। ओके मैम, और एक वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का प्रूफ भी करना है हमें? नहीं, वो आपको नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, बट हमने जो क्लास में डिस्कस किया है वो ही कंसिडर करिए आप अभी के लिए। ओके मैम। मैम मैम लास्ट में जो ग्राफ था मैम उसके हमें राइट साइड ही क्यों हमें लेनी है, उसकी क्योंकि कंसिडर करनी है? जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं बेटा किसी भी इंटरवल के ऊपर, मुझे नहीं पता उसका कैसा भी ग्राफ है, मैंने एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ किया, बट जो भी होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा किसी भी टाइप का, एक इंटरवल में हमेशा लास्ट राइट बाउंड्री पॉइंट पे ही उसका मैक्सिमम आएगा ना, क्योंकि इंक्रीजिंग है, बढ़ता ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसके बाद भी बढ़ेगा, बट ओवर दिस इंटरवल तो आई नो कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा राइट बाउंड्री पॉइंट पे मिलेगी, डिक्रीजिंग फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट पे मिलेगी। तो इस सिचुएशन पे आके आपको हमेशा बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, एंड इन 99% ऑफ द एग्जांपल्स ये जो फंक्शंस आपको मिलेंगे इंक्रीजिंग मिल जाते हैं, बस ये कंफर्म करना है और आपको यूज कर लेना है वो इन्फॉर्मेशन। यस मैम, हमें ये जो इस पॉइंट के आने के बाद हमें मैक्सिमम ही क्यों देखना है इस चीज का? क्योंकि लेस से रिप्लेस करना है ना, देखो मैं कह रही हूँ आपको हमेशा अपर बाउंड ढूंढना है चीजों का, आपको एक ऐसा आंसर देना है कि ये चीज किससे कम है, बिकॉज एरर का हम एक अपर बाउंड ढूंढ रहे हैं, आपको ये नहीं बताना ये चीज किससे बड़ी है,
तो क्योंकि आपको पता नहीं ये किससे कम है, तो कोई भी चीज अपने मैक्सिमम से ही कम होगी ना, कोई भी नंबर आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो डेफिनेटली वो कहीं भी हो बट अपने मैक्सिमम से तो हमेशा कम ही रहेगी. दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अपर बाउंड्स एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द मैक्सिमम्स. Right? Okay, that's all for today. We are done with the time. I'll take rest of your doubts next time. Okay, bye. Happy Diwali. मैम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू कराओगे? I'll let you know. अभी Okay, दिवाली ma'am. एंजॉय करो आप. ओके, हैप्पी दिवाली थैंक मैम. यू. हैप्पी दिवाली मैम. थैंक यू मैम, हैप्पी दिवाली मैम.